پھر یہ آیت کا یہ جو اگلا حصہ تھا، ان تین چیزوں میں، یہ چار چیزوں میں سے ایک وہ تھی جس پر جو غیر اللہ کو جس کا اہل بنا دیا۔ ایک بات تو میں پھر اسے دہرا رہا ہوں کہ اسے سمجھ لیں وضاحت سے کہ یہ صرف کھانے پینے کی وہ چیزیں حرام ہوتی ہیں جو ذبح کی جاتی ہیں۔ غیر اللہ کے نام پر اگر ذبح کیا گیا تو وہ حرام ہو گئے۔ وہ چیزیں حرام نہیں ہوتی جن کے لیے ذبح کی شرط نہیں ہے۔ وہ کوئی شخص غیر اللہ کا نام لے لے تو اس سے حرام نہیں ہوتی۔ اس کی علت ہے اور اس کی وجہ ہے۔ پہلی چیز تو، اور اس کا سائنٹیفک ریزننگ ہے، پہلی چیز تو آپ عام اپنے بارے میں اپنے ملک کے حالات کے اوپر غور کریں۔ 90% کسان ہندو ہیں۔ کھیتی اور زمین، کھیتی کی زمین 90% ہندوؤں کے پاس ہے۔ ہندو اپنی ہر کھیتی پر غلہ مارکیٹ میں لانے سے پہلے 3 بار پوجا کرتے ہیں۔ 3 بار پوجا کے بغیر غلہ نہیں پہنچتا آپ تک۔ بعض جگہ اس سے زیادہ ہوتی ہے، 3 سے کم نہیں ہوتی کسی۔ جب کھیتی کرتی ہے تو پوجا ہوگی، جب زمین جوتی جائے گی تو پوجا ہوگی، اس کے بغیر نہیں، ان کا شبھ نہیں ہوتا۔ وہ تو بہت اس بات کو کہ اشبھ سے تو بہت ڈرتا ہے۔ انہیں اپنے یہاں کی چیزیں نہیں، انہیں تو آپ دوسرے مذاہب کی چیزیں دے دیجیے، ان سے کہیے یہ بڑا یہ کرو گے تو اشبھ ہو جائے گا، پھر زندگی بھر نہیں کرے گا۔ اشبھ سے بہت ڈرتا ہے۔ برکت چاہیے اسے، مطلب پیسوں کی۔ دنیا کی اکیلی قوم ہے جو پیسوں کی پوجا کرتی ہے۔ لکشمی کی پوجا ہوتی ہے، پیسوں کی دیوی بنائی، یہ دنیا کی اکیلی قوم ہے۔ تو یہ جہاں پیسے جا رہے ہو جن چیزوں سے، ایسے اشبھ سے وہ بہت ڈرتے ہیں۔ ان کے یہاں کہیں دھرم میں آیا ہو نہ آیا ہو، کوئی دوسرا بتا دے کہ یہ اشبھ ہوتا ہے تو پھر اسے نہیں کرے گا، اس سے بہت دور سے نکلیں گے۔ تو کھیتی کے 3 موقعوں کے اوپر، کراپ کے کٹنے اور مارکیٹ میں بھیجنے تک، موقعوں کے اوپر اس کی پوجا ضروری ہوتی ہے، ورنہ اشبھ ہو جائے گا۔ یہ سارا غلہ جو آپ کھاتے ہیں، اس پر سب پر غیر اللہ کا نام لیا جا چکا ہے۔ 10% صرف مسلمانوں کی کھیتی ہے، اور وہ 10% کہیں الگ نہیں آئی کہ یہ بولے مسلمانوں کے نشان لگے ہوئے، مسلمانوں کے یہاں سے آئے، کتاب کو خرید لے جا کر، وہ خرید لے جا کے تو آپ کی ضرورت پوری نہیں ہوتی اس 10% کی، تو وہ تو مکس ہے غلہ، الگ بھی نہیں ہے۔ اگر یہ شرط اس پر لگا دی جائے کہ جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا وہ آپ کے لیے حرام ہو گیا، اور انہوں نے پوجائیں کی اس پر، تو پھر شروع سے بچپن سے لے کے آج تک آپ حرام ہی کھا رہے اور حرام سے بچ ہی نہیں پائیں گے، حرام ہی کھاتے رہے۔ شریعت نے آپ کے اوپر آپ کو ایسی سختی میں نہیں ڈالا۔ اور اصل میں دیکھیے، یہ انسان کی غذا صرف لیونگ تھنگز، جاندار، پیڑ پودے بھی جاندار ہوتے ہیں، سبزی ترکاری کا شمار جانداروں میں ہوتا ہے، لیونگ تھنگز جاندار ہوتے ہیں، زی روح نہیں ہوتے۔ یہ فرق سمجھیے گا، زی روح نہیں ہوتے، جاندار ہوتے ہیں۔ ہر جاندار زی روح نہیں ہوتا، ہر جاندار کے ساتھ روح نہیں ہوتی۔ یہ جانور جو ہیں ان کے ساتھ میں یہ جو جانداروں کی جو نسل آگے اونچی کیٹیگری کی آتی ہے، اس اونچی کیٹیگری میں انسانوں سے پہلے جانوروں سے ارواح یا روح شروع، روح کا کنیکشن اسٹارٹ ہوتا ہے۔ جانداروں سے پہلے جان ہے، روح نہیں ہے۔ یہ جان اور روح تو الگ الگ چیزیں، نفس اور روح ان کو آپس میں بدل دیتے ہیں، نفس کا ترجمہ روح کر دیتے ہیں، نفس کا ترجمہ روح نہیں ہوتا۔ رحم مادر میں جب اسپرم یا نطفہ داخل ہوتا ہے، ہر اسٹیج پر وہ لیونگ تھنگ اور جاندار ہوتا ہے، جان نہیں ہوتا۔ تو اب مائکروسکوپ اور خوردبین سے دیکھ لیا گیا، وہ ایک دو نہیں بلکہ بہت بڑی اسپرم کے اندر لاکھوں کی تعداد کے اندر جاندار ہوتے ہیں، اور وہ جاندار جو ہے وہ ایک کو فرٹیلائز کرنے کے لیے دوڑ لگاتے ہیں، کمپٹیشن ہوتا ہے، اور ان میں سے کوئی ایک ہوتا ہے خالی جو فیمیل ایک کو فرٹیلائز کر پاتا ہے۔ تو ہر اسٹیج کو وہ لیونگ تھنگ ہے، وہ جاندار ہے۔ پھر فرٹیلائزیشن کے بعد رحم مادر کے اندر جب جو کچھ بھی جو چیز بھی فارم ہوتی ہے،
उसको इंसान नहीं कह सकते। जो और वो बड़ी होनी शुरू होती है कि गोश्त वो टुकड़ा बना, एक गोश्त का टुकड़ा बना, हड्डियां बनी, इंसान नहीं कह सकते भैया। तो ये जो ग्रो करने वाले ये हर स्टेज पर जानदार है। बेजान चीजें बढ़ती नहीं है, बेजान चीजें ग़िज़ा हासिल नहीं करती किसी से, ग़िज़ा हासिल करती है वह उसी एटमॉस्फेयर से, वहां के पेट से। तो ये ग्रो कर रही है जैसे पेड़ पौधे बढ़ते हैं। पेड़ पौधे जो है ये वीरू नहीं होते। ये खास स्टेज आती है जब इंसान हो गया, अब रूह का कनेक्शन आया, वहां से वो हुर्मत हो गई उसकी, काबिल एहतराम। उससे पहले वो काबिल एहतराम नहीं है, यहां से हुर्मत कायम हो गई। अब वो ह्यूमन बीइंग हो गया। पहले खाली लिविंग थिंग था, लिविंग बीइंग, एक जानदार शय, अब इंसान हो गया। अभी वो शुरू की स्टेजेस में है मां के पेट में, अभी 3 ही महीने हुए, ये 4था महीना है, यहां से वो इंसान हुआ। इससे पहले इंसान नहीं था, एक जानदार चीज थी, लिविंग थिंग के दे एक चीज जान, जीरू चीजों की हुर्मत है, जीरू जानदारों की हुर्मत है, इन्हें मारा नहीं जा सकता। आप बकरी को कत्ल नहीं कर सकते, आप ऊंट को कत्ल नहीं, जब तक वो नुकसानदेह न हो, इन्हें मार नहीं सकते। हत्या हराम है, हत्या गुनाह है, जिसे जीव हत्या कहते हैं ना, जीव हत्या का इल्जाम लगाते हैं, क्या तो पाप है। हत्या नहीं, मार नहीं सकते, हलाल करते। हलाल कोई चीज तब की जाती है जब वो पहले हलाल करते हैं, का मतलब क्या हुआ? ये किसी अमल का नाम नहीं है, आपको तो हक ही नहीं हलाल करने का किसी चीज, ये अल्लाह का हक है। तो ये आप कैसे हलाल करते हैं? कोई चीज जो बुनियादी तौर पर जिसकी हुर्मत थी, रोका गया था, मना किया गया था, अल्लाह ने कुछ शर्तों के साथ में उसकी इजाजत दे दी, महदूद हिस्से में, लिमिटेड। तो ये अल्लाह ने हलाल कर दिया, उसे आप हलाल करना कहते हैं, उसका खून बहाते जो तरीका इस्तेमाल करते हैं वो हलाल कर रहे हैं। अब में अल्लाह ने हलाल कर दिया, हलाल कराते बुनियादी तौर पर हराम। एक मर्द और औरत का आम रिश्ता एक दूसरे से हराम है, इंसान की जरूरत भी है, अल्लाह ने हलाल किया कुछ शर्तों के साथ। एक तो महदूद किया, हर एक दूसरे के साथ में ताल्लुक कायम नहीं कर सकता, सिर्फ इन शौहर और बीवी करेंगे निकाह के साथ, महदूद किया। उसके बाद फिर कुछ और प्रोसीजर भी रखा, तरीक़ेकार भी कि ये तरीक़ेकार भी इस्तेमाल होगा। और तीसरी शर्त बड़ी है, अल्लाह का नाम लिया जाए, अल्लाह का नाम नहीं लिया तो रिश्ता हलाल नहीं हुआ। तो हराम आम तौर से वो रिश्ता एक दूसरे के साथ में कायम करना हराम था। अल्लाह ने महदूद लिमिटेड स्फीयर में कुछ शर्तों के साथ इजाजत दे दी, और उस शर्त में एक अल्लाह का नाम लेना दिया। ऐसे ही वो जो जी रूह है, जिनके साथ में रूह है, वो हराम है, बकरी हराम है, गाय भैंस बैल ऊंट हराम है, इनको आप नहीं खा सकते ऐसे ही काट कर, इनकी हत्या नहीं कर सकते, वो गुनाह है। लेकिन इंसानी जरूरत है तो अल्लाह ने हलाल किया। पहली बात तो ये कि लिमिटेड स्फीयर, सारे जानवरों को नहीं कर दिया, इसमें से कुछ हिस्सा जो आपके लिए अच्छा था उसे हलाल करार दिया, उसके हलाल का ऐलान किया। सूरह नाम में नाम आए हैं कि ये कैटेगरी के जानवर तुम्हारे लिए हलाल है, हलाल हुआ, जो सब नहीं हुआ, एक लिमिटेड कैटेगरी हलाल हुई, हुर्मत थी, जीरू थी। फिर उसके साथ एक प्रोसीजर है अडॉप्ट करना है, उसके साथ एक तरीका इस्तेमाल करना है, हलाल कर दिया। अब आप जाकर ऐसी काट कर नहीं खा सकते, एक प्रोसीजर जो इस्तेमाल करेंगे, उस प्रोसीजर की एक शर्त ये कि अल्लाह का नाम लें। इसलिए क्या अल्लाह का नाम, इसलिए कि अल्लाह ने उस हराम से हलाल किया है, अल्लाह ने आपके लिए उसको हलाल करार दिया, वरना हराम था। तो ये जो जानवर है जिनके ऊपर अल्लाह का नाम लेना जरूरी होता है, ये वो है सारे जो जीरू है। आप ककड़ी काट कर ले आते हैं, आप बेले काट कर ले आते हैं, आप पालक काट कर ले आते हैं, अल्लाह का नाम नहीं लेते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं, नहीं लिया तो हराम नहीं हुआ, हराम नहीं हो गई। कोई और किसी भगवान का नाम लेकर काट लाया,
मार्केट में लाकर बेची, आपके लिए हराम नहीं हुई, चाहे जिस भगवान का नाम लेके किसी ने काट ली हो। ये वो चीजें हैं कि जिन पर अल्लाह का नाम लेना जरूरी नहीं था, लेकिन तो बहुत अच्छी बात है, हर काम अल्लाह के नाम से करना चाहिए, लेकिन लाजिम करार नहीं दिया गया था। और यही वो चीजें कि जिन पर किसी ने गैरुल्लाह का भी नाम ले लिया हो तो भी आपके लिए हराम नहीं होगी, आप अल्लाह के नाम से खाएंगे। ये अल्लाह के नाम की शर्त उन जगहों पर है कि जो चीजें बुनियादी तौर पर हराम थी, उनकी हुर्मत थी, अल्लाह ने तुम्हारी जरूरत के लिए उसमें से कुछ हिस्से को हलाल करार दिया, तुम उसे अल्लाह का नाम लेकर खाओगे। अल्लाह का नाम नहीं लिया जानबूझकर तो हराम हो गया, और गैरुल्लाह का नाम लिया तो हराम हो गया। इसका इतलाक आपके गेहूं, सब्जी, फलों पर नहीं होगा, उन चीजों पर नहीं होगा जो गैर दबीहा नहीं, कि मैंने आपको रीजन समझाया और वजह समझाई। तमाम मुफस्सिरीन ने इसको यही तक महदूद रखा है, इसको इससे आगे नहीं, लेकिन दूसरी चीजें हैं और जो मना की गई है कि कैसे, क्यों, किस वजह से मना है, लेकिन उसका ताल्लुक हलाल और हराम से नहीं है, खाने के हलाल और हराम से नहीं, कि ऐसी चीजों पर गैरुल्लाह का किसी ने नाम ले लिया जो ज़बह की कैटेगरी से, ज़बीहे की कैटेगरी से नहीं है, तो वो गैरुल्लाह का नाम लेने से हराम नहीं हो जाती किसी और के नाम लेने से। और सी दूसरी इल्लतें, ऐसी चीजें जो दूसरों ने कहीं गैरुल्लाह का नाम लिया, हमारे पास ले आए खाने को, तो वो खाने की नहीं हुई, उसको ऐसे कबूल कर लेना खुशी खुशी जो है वो गलत है, वो अमल गलत है, कि इससे ये चीज, ये मैसेज आएगा कि हम तुम्हारे शिर्क में या तुम्हारी दूसरी चीजों में शामिल हैं, या हम पसंद कर रहे हैं, या हम वेरीफाई कर रहे हैं। ये भी जरूरी है कि हम बता सकें कि नहीं, तुमने गैरुल्लाह का नाम लिया, हम अल्लाह के नाम से खाएंगे, हम उसे रोक सके, हम बता सके तो ठीक है, वरना ऐसे लेना नहीं मुनासिब है और नहीं ठीक है। और मैं खाली लफ्ज़ मुनासिब इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मुझे हक नहीं कि मैं शरीयत के अंदर ये फैसले लगाऊं कि कितना बड़ा गुनाह है और कितना बड़ा नहीं है, तो ये मैं अल्फाज से बचता हूँ। उनकी इल्लत दूसरी है कि आप न लें, या लें तो किन शर्तों के साथ में लें, लेकिन अपने आप में फी जिनसी वो जिन्स हराम नहीं हो गई, वो चीज हराम नहीं हो गई किसी ने अगर गैरुल्लाह का उसके ऊपर नाम लिया, वरना हर गेहूं का दाना और हर चावल का दाना आपके ऊपर वो भी हराम हो जाए।